See, today we will study point 11, integrals of the form tan to the power mx sec to the power 2nx, and यहाँ पे क्या है cot to the power mx cosec to the power 2nx. ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, tan and cot can have any power, क्योंकि m है, m can be any integer. तो ये बात याद रखो, m can be any integer, बट यहाँ पे 2n है, तो 2n जो भी है दिस कैन बी ऑलवेज अ इवन इंटीजर. क्या हो सकता है ये इवन इंटीजर, समझ पाए. जैसे कि एक छोटा सा, इन ऐसे केसेस में क्या करना है हम लोग को, इन सच केसेस कंसीडर tan x as t, tan x को क्या लो t, एंड इन केसेस में कंसीडर cot x is equals to t. I'll give you a small example, पहले इसको लिखो then I'll explain. See, let us take a basic example. मान लो tan to the power 3x है and sec to the power 4x है dx. तो तुरंत मुझे क्या करना है, I will consider tan x is equals to t. tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec square. tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec square. तो tan का डेरिवेटिव करो sec square x is equals to t का डेरिवेटिव is what, dt by dx. तो अभी dx को इधर ले आओ, तो sec square x dx is equals to dt. So what I can write here, tan cube x है, तो tan x अगर t है तो tan cube क्या हो जाएगा, t cube. sec to the power 4 है, मैं sec square को रखा, और बाकी जो sec square x बचेगा, sec square x dx वो क्या है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, into dt. Understood? sec to the power 4x था, इसको मैंने खोल दिया, sec square x into sec square x कर दिया, तो sec square x dx क्या है, dt, और sec square x को रखा मैंने. अभी मेरे पास dt है t है, तो ये sec square x को भी कुछ मैं सोचूंगा. sec square x is what, 1 plus tan square. sec square x का फॉर्मूला ये भी तो होता है ना, 1 plus tan square x. तो 1 plus क्या हो सकता है, t square, because tan x क्या था, t, तो क्या लिख सकता हूँ, 1 plus t square. तो t cube into 1 plus t square dt. तो t cube into 1 क्या होता है, t cube plus t square t to the power 5 dt. अब इंटीग्रेशन करो, t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, t to the power 3 plus 1 by, and t to the power 5 का t to the power 5 plus 1 by 5 plus 1 plus c. so t मेरे लिए क्या था, tan x, so it will be tan to the power 4x by 4 plus tan to the power 5x by 6x by 6 plus c. this is my answer. easy? note. See, जब cot है cosec है, cot का डेरिवेटिव क्या होता है, cosec स्क्वायर. सो सेकंड क्वेश्चन में पहले बताता हूँ, लेट यहाँ पे क्या लेंगे, cot x is equals to t. so cot's derivative is how much, minus cosec square x dx is equals to dt. क्योंकि dt by dx होगा तो dx इधर आ जाएगा ना. ठीक है, हमारे पास cosec तो दिख ही रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, I can write cot x is t, मतलब cot square is how much, t square. cot square क्या होगा, t square. after that keep one cosec square x as it is and और एक cosec square x को अलग करो, cosec square x dx अलग किया मैंने, but cosec square dx क्या होता है, माइनस को उधर ले जाओ, माइनस dt. so मैंने पुट किया t square और इधर क्या डालेंगे, माइनस dt. बीच वाला पार्ट में कौन बच रहा है, cosec square x. तो cosec square को बदलो, cosec square क्या होता है, 1 plus cot square. cosec square x is what, 1 plus cot square x. तो cot x is t, तो 1 plus t square. ठीक, so this is t square into 1 is t square plus t to the power 4. माइनस को बाहर निकाल दो dt. ठीक है, this is nothing but equal to, माइनस है, t square का इंटीग्रेशन क्या होगा, t cube by 3 plus t to the power 4 का t to the power 5 by 5 plus c. तो माइनस t is how much, cot. तो cot cube x by 3 plus cot to the power 5x by 5 plus c. Understood? This is the answer. Note. cosec to the power 4x, तो इसको कैसे करना है, cosec square x into cosec square x dx करो. ये तो डेरिवेटिव किसका दिख रहा है, cot का,
तो आगे वाले को बदलो, इस कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या मान सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो कॉट एक्स को क्या ले लो t, ठीक है ना, कॉट एक्स को t ले लो और डेरिवेटिव करो कॉट का, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx को क्या लिख सकते हैं हम लोग माइनस dt। तो कोसेक स्क्वायर dx इज हाउ मच माइनस dt। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, 1 प्लस टी स्क्वायर dt। सो माइनस है, 1 का इंटीग्रेशन इज हाउ मच t, खाली t। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू t, अगर यहाँ 5 होता तो 5t, तो प्लस टी स्क्वायर का क्या होगा बाई 3 प्लस c। अभी t के जगह में जो लिए थे डाल देंगे, समझ गए। बट अभी एक अलग तरह का क्वेश्चन करेंगे जहां पे दोनों ही पावर ऑड में हो, समझ रहे हो, tan और sec दोनों ऑड, cot cosec दोनों ऑड, ठीक है। फर्स्ट नोट दिस। नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, सेम होगा tan और sec दोनों, बट दोनों का पावर ऑड होगा। 2m plus 1x sec 2m plus 1x dx, दोनों का पावर ऑड, या तो दोनों मतलब या तो cot में भी ले लो, cot 2m plus 1x cosec 2n plus 1x dx, ये भी ऑड है ये भी ऑड है, both cases ऑड। when both the thing are odd, ऐसे केसेस में हमेशा यहाँ पे क्या लेना, let sec x equals to t। Are you understanding? इसमें sec को लेना t और इस केस में किसको लेना t, cosec x, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे वो तो मैं समझाऊंगा नेक्स्ट केस में, अंडरस्टैंड। जल्दी सी हाउ टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। दोनों ही ऑड है तो मैंने क्या बोला है sec x को t लेंगे, बट उससे पहले ऑड वाला एक एक चीज को साइड कर दो। क्या कर दो, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x एंड tan x sec x को अलग कर दो, tan x sec x dx, है ना। अब ऐसे केसेस में मैंने क्या बोला था, जब दोनों ऑड होता है तो व्हाट डू वी टेक, लेट sec x इक्वल्स टू t। डेरिवेटिव sec x का क्या होता है sec x tan x, tan का sec स्क्वायर x, बट sec x का डेरिवेटिव इज sec x into tan x is equals to what, dt by dx। तो sec x tan x dx is equals to dt। तो इंटीग्रेशन sec x tan x dx की जगह क्या लिखना dt। अब sec x को t लिया था तो sec स्क्वायर x की जगह क्या लिखूंगा t स्क्वायर। बच कौन गया tan स्क्वायर x, हम सबको पता है tan स्क्वायर x क्या होता है, tan स्क्वायर x प्लस 1 sec स्क्वायर x होता है, तो tan स्क्वायर x विल बी व्हाट sec स्क्वायर x माइनस 1 और sec x को क्या लिया t, तो t स्क्वायर माइनस 1, तो हियर आई पुट व्हाट t स्क्वायर माइनस 1, तो t स्क्वायर t टू द पावर 4 माइनस t स्क्वायर इनटू dt। तो t टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन इज हाउ मच, t टू द पावर 5/5 माइनस t क्यूब बाय क्यूब 3 प्लस c। अब tan t की जगह डाल दो sec x, अंडरस्टूड, कर लो। सही। सेकंड वन इज व्हाट, यू जस्ट हैव cot क्यूब x dx। तो मैं क्या यहाँ पे करता हूँ, cot क्यूब को क्या करूँगा cot स्क्वायर x इंटू cot x dx। cot स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1, cot इज व्हाट cosec स्क्वायर x माइनस 1। अब इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करो, cosec स्क्वायर x इंटू cot x dx, है ना। अब माइनस 1 इंटू cot x उसको भी अलग, तो माइनस cot x dx। इस केस में cot x को t लो, लेट cot x इक्वल्स टू t, क्योंकि उसका डेरिवेटिव दिख रहा है। cot का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x dx इज हाउ मच dt। cot का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर, बट हमें क्या दिख रहा है cosec स्क्वायर x dx, तो cosec स्क्वायर x dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस dt इनटू cot x क्या था t और माइनस cot x, तो इसका माइनस cot x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज दैट log sin x, डायरेक्टली लिखा था ना, cot x का इंटीग्रेशन इज log sin x, तो माइनस log sin x
प्लस सी। तो ये माइनस बाहर निकाल दो, t का इंटीग्रेशन इज हाउ मच, t² माइनस log sin x प्लस c। अब t के जगह में व्हाट यू कैन पुट, cot माइनस cot² x/2 माइनस log sin x प्लस c। अंडरस्टूड? नोट करो। What was the third question? Integration tan to the power 4x dx। तो इसको हम लोग अगर तोड़ दें तो क्या कर सकते थे, tan² x into tan² x dx। So keep this tan² x, इस tan² x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec² x minus 1, ठीक। So now multiply tan² x into sec² x dx, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो, या तो tan² x will multiply with 1, तो माइनस tan² x dx। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, लेट tan x इक्वल्स टू t, क्योंकि sec का तो पावर इवन है ना, तो किसको tan t लूंगा, tan को, तो tan x इक्वल्स टू t, तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, sec² x dx इज इक्वल्स टू व्हाट, dt। तो व्हाट आई कैन राइट हियर, tan² x के जगह में क्या लिख सकता हूँ, t² into sec² x dx के जगह में dt माइनस tan² x। tan² x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ना ही sec² x है, वहां पे है क्या, तो tan² x का अगेन वी कैन राइट एज व्हाट, sec² x minus 1, ठीक। सो दिस इज t² का क्या होगा, t³ / 3 माइनस sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, tan का डेरिवेटिव sec² x का इंटीग्रेशन माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, क्योंकि dx है ना, तो क्या होगा x प्लस c। अभी t के जगह में व्हाट यू कैन पुट, tan x। क्लियर? tan x equal to 2, but t see now integrals of the form like this, sin to the power mx or else, or you can write here cos to the power nx dx, ठीक है ना। तो यहाँ पे m और n कुछ भी हो सकता है, ऐसे सोच लो, if power of sin is odd, ठीक है ना, then consider cos x equals to t, ठीक है। if power of cos is odd, cos का पावर अगर odd है, consider sin x equals to t, ठीक। and if power of both, दोनों ही odd है, the power of sin as well as cos both is odd, या both are odd, then consider either of them, then consider either of them as what, t। इधर मतलब कोई से भी तुम कर सकते हो, any one, और अगर दोनों ही इवन है, आउट ऑफ सिलेबस है, डी मोवाइट्स थ्योरम वहां पे यूज होता है, जो तुम अभी नहीं पढ़ोगे, हायर क्लासेस में पढ़ोगे, दोनों अगर इवन होता है तो, है ना। अगर ऐसा दोनों इवन है चलेगा, sin to the power 4 cos to the power 4, तो तुम कंबाइन करना सीख जानते हो, into 2 to the power 4 divided by 2 to the power 4 करके you can make it a normal thing, but if powers are different you have to use de Moivre's theorem in trigonometry which you don't know right now, ठीक। तो अभी तक तुम्हारी जिंदगी में जो भी होगा दोनों में से कोई एक ऑड जरूर होगा, ठीक। हाँ, नोटेड। ऐसा स्टॉक से क्यों देख सकते हैं, 5x, ठीक है। तो दोनों ही ऑड हैं, तो आई कैन टेक एनी वन एज t, तो लेट cos x is equals to t, है कि नहीं। तो इंटीग्रेशन sin³ x cos to the power 5x dx, तो cos x को मैंने टी लिया, सो दैट इंप्लाइज cos का क्या होता है, हमेशा जब ऑड होना जो बड़ा चीज है उसको टी ले लो, बेटर होता है। हमेशा जो बड़ा है, cos का पावर ज्यादा है तो इजी जल्दी सॉल्व होगा, तो cos का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस sin x dx इज इक्वल्स टू dt। तो sin³ x है, तो एक sin x को अलग कर दो, sin x dx, ताकि यहाँ से हमें मिल जाए ना, है कि नहीं। cos to the power 5 है, तो cos x t था, तो t to the power क्या हो गया 5, बचेगा कौन, sin² x, तो sin² x बच रहा है, तो sin² x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos² x,
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब कॉस एक्स क्या था t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 5 साइन एक्स डी एक्स की जगह में क्या लिख सकते हैं माइनस डी टी, तो टेक माइनस आउटसाइड टी टू द पावर 5 माइनस टी टू द पावर 7 डी टी, तो माइनस टी टू द पावर 5 का क्या होगा टी टू द पावर 6/6 माइनस टी टू द पावर 8/8 प्लस सी, अब पुट कर देना t की जगह cos x पुट कर देना, क्लियर। इन द नेक्स्ट केस साइन इज ऑड cos इज इवन, तो हमेशा जो ऑड है दूसरे वाले को क्या करना है t लेना है, साइन का पावर अगर ऑड है तो साइन को नहीं लेना है t, किसको लेना है t cos, तो लेट cos x इक्वल्स टू t, बट जब दोनों ऑड है तो किसी को भी t लो फर्क नहीं पड़ता, तो cos x is t and derivative is how much minus sin x dx is equals to how much dt, तो sin क्यूब x है तो sin स्क्वायर x को मैं रखा, cos टू द पावर 4 में क्या लिख दूंगा t टू द पावर 4 और एक sin को मैंने बाहर करना था sin x dx, तो sin स्क्वायर x की जगह व्हाट आई कैन पुट 1 माइनस cos स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर मींस 1 माइनस t स्क्वायर इनटू t टू द पावर 4 sin x dx is how much minus dt, so take minus common t to the power 4 minus t to the power 6 dt, तो minus t to the power 5/5 फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, नहीं माइनस ही रहना तो, नहीं तो t to the power 7/7 प्लस c, अंडरस्टूड और एनी डाउट, क्लियर, प्लीज नोट।